and I wanted to visit your Loam because of the cherishing personality of Prashant sir and you people all. I have seen your other training photos right back. Are you comfortable? Yes. Which language preferable? English, Hindi, Marathi? English. Everybody? Yes. Okay, thank you so much. Let's come to this one. This topic is our the values and ethics. This seems to be slightly philosophical topics. Like you people are born to do something in life. This is your transition stage in your life. Prashant sir, in somewhere there you are in the following that one. Everybody like to do progress in his life. Everybody. They want to top position at this level best. Now, more important thing, what is the difference between you and the leader? Example, I just go to the, I am also teacher, professor in college, so it's little bit something different than the other trainees are there. The trainers are doing, I am going to be, you can go from here to Bombay by Samruddhi Highway. Yes. If you think, I want to go, is it possible? No. Everybody has a right to do dream. Like goal setting, somebody might have taken the topic goal setting. I'm just coming to that one. Somebody, okay. If you dream from here, I want to go to Bombay. Will you go directly? No. What you have to do? Dream has to turn to reality through your goals. How it is possible? Here, first you have to select the roadmap. Either you guys Samruddhi, you can go by other route, old route, or you can go by train or go by plane. As per if you want to go by Samruddhi, I don't know last phase of Samruddhi has been started or not. It might have started. So what you will do? You will pick up the proper vehicle, that level, not small vehicle. Then you will do proper fitness of the engine, air pressure. Then you are as a driver or your driver, which is fitness, mental, physical fitness, and then you will start. When you will start, you will plan at what time I will enter from here and I will exit from there, where I will take the break. Okay, this is a planning, and when you execute that planning, you will directly go to there. Okay, that is the journey you have to do, that goal setting. Now come to the second one. What are the factors required for that one? One is proper condition of vehicle, then proper driver condition, and proper petrol or diesel. Okay, that is required. Same way, in the journey of your life, you require something else. Like, suppose I take the example of any vegetable you are making a cake. What you do if you prepare the vegetables or sabji of any, what are the things, potato or non-veg. Okay. You say the name as is the mutton masala, something like that, or what are they? I don't eat, so I don't have knowledge. Or fish curry, something like. What do you say? Fish curry means fish and curry means water, something colored water. What do you see on your mind? You can see some that solid things and liquid things. Is it possible not only that is the success of that dish? No. It required other ingredients like salt, masala, all these things which you cannot spices, you cannot see, but it is evil. Same way, when you become a leader doesn't mean a political leader. You are a head of any organization, you are a leader. You are a head of the JCI president, you are a leader. You are head of Lions Club, you are a leader. You are a head of any big organization, you are a leader. Okay? Then what are the quality required for that one? One quality is that, example, Nitin Gadkari or your Modi, what are the example you take? If you go to that post, it doesn't meet. Suppose doctor, if I am a doctor, I got the degree as a doctor, I am operating the patient because my one of the profession, dentist, other profession, oral cancer I operate, tobacco good problem, facial trauma. If I operate that person, it doesn't mean that I am a successful doctor. No. I require some other qualities like how to handle the patient, how to handle the relatives. That's why you might have heard one thing in college. You have completed college life. Those who are backbenchers are very good, successful person. In our field, we say those who are the backbenchers become a very good doctor. They have very good clinics. But those who are the toppers, they can't be successful in the clinics, hospital. They are a very good academician. They are in the college. Why this happens? This is a question nobody asked me, but I just thought on that one.
Why the topper gold medalist person cannot become a very good doctor in hospital? And I'm giving one example because I'm familiar with that example. But why the backbenchers can be a very good practitioners in society, good doctor? Question is that even you get a degree of doctor, engineer, diploma, knowledge, what degree of it, it doesn't solve the purpose. You require some other qualities. That quality, how you handle the person, how you speak, how you react. These are the important quality. Other example I will take you, Mr. Ratan Tata or Sachin Tendulkar. They are the big in their level. Why they are big? If I say Ratan Tata in the line of business, Ambani is quite ahead than Ratan Tata. But why the respect of Ratan Tata is more? You can ask the question. Why the respect of Ratan Tata is more? Why the trust on Ratan Tata is more? Or Sachin Tendulkar. There is a colleague of Sachin Tendulkar, Vinod Kambli, both were there going. But in between, why Tendulkar cross and why still most respected is Sachin Tendulkar? Because not because he had scored the run, because his Bihar pattern. He never argued with anybody. He never crossed his temper. He was always cool. Huh? That is the important quality to become that one. Yes. So what you are doing now, because I am coming for you. So what are the qualities now you have? And for successful people, other than your license or your degree, your qualification, what is the other things required? That we'll discuss. And that is the important thing I'm going to do. And that is the foundation of true leadership. Prashant sir is now leading you. You are observing him. Observing means how he talks with you, how he talks with other people. If there is a crisis, how you handle the crisis. You might have heard the training on leadership. And how you handle the crisis is more important. Like say prime minister. Prime minister handled the crisis very well in 3-4 situation. Like COVID, he handled the crisis. Farmer agitation, he handled the crisis. Yeah. Again, he handled the crisis during demonetization. I'm not saying as a prime minister, but as a leader, I'm observing him, what he is doing. Same way, I just talked with him. I'm in Lawrence, how big leaders are there. How in his crisis, how I will react to the situation, how my other leaders are reacting to the situation. Practically. Then, if my reaction is different than their reaction, I just approach them, ask why you are reacting that way. What examples they are giving, that is more important. That you have to learn it. You took the degree, you are doing your work, but at the same time, how you are doing the work is more important. How you react in situation. That's the qualities you want. Okay? And most important thing is not there might be so many doctors are here. Please forgive me. I'm giving the example. There are so many orthopedic surgeons, but why the name of one or two or more? There are so many computer business there. Why the only one or two people are more? Because of there are some other skills. Winners don't do different thing, but they do the thing in a different way. That small little things matters a lot. One is you will fail on 49 marks out of 100. You will pass on 50 marks. This is 1 mark difference, but it creates a lot. This is not a 1 mark difference. I have seen my batchmates who were in final years. I have my roommates. He used to see from the windows, open window, and he never used to study much more. He failed, I pass. When I pass, it is not a question of pass and failing. I just clear my postgraduate, and he also passed in next exam, but the opportunity never wait for anybody. He has to fight a lot. And after 3 years, he got post graduation. When I become a lecturer in Aurangabad College, he came there as a PG student. So that is a mistake. If you do the small mistake, you have to pay a lot. Now question I mean, what we want to do and why. Most important thing, you might be beautiful, you may be intelligent, you may be rich person. But important thing is, you should not be human being, you should be being human. What is the difference between human being and being human? Can you tell me? Please. Difference between human beings and being a human. What is the difference? Any problem here? Huh? Yeah, sir. ये है क्या? Yeah. What difference between being human and human beings? Now you can tell me. So each and every person on this earth is a human being. Hmm. But being human is someone who
who has humanity, Hmm. who has that emotion to help the other human, like that helping nature should be there. Hmm. I can tell one example from your side, but I'll take a real example from my side. When I was entered in first year in GMC Nagpur 1991, there are so many our group batchmates, around 30-40 students were there. Being a boys, girls were those who were the smart girls, fair skin girls, used to like them. First year. But when our journey started, first year, second year, third year, final year, to whom we used to like, not the smarter, beautiful person, but the person or the girl who used to speak nicely, to take the others' cares. If you are in a problem, there is who used to help us. That is our liking. है ना? So that is the quality. So if you have a compassion, you have a helping nature, you are a considerate person, ready to help others. If you have this quality, you can become a growing into from a human being to being human. You can see in society also. Those who are considerate to the others, that is the important. What money you have is not important. Example, if I ask question, one small question in Nagpur, who is the most rich person in Nagpur? Can you tell the name of the person? No. But if I ask you other question, can you tell the person who has helped you when you are in crisis? Can you tell the name of the person? That's it. Why you can remember the name of that person? It is because he or she helped you when you are in crisis. So always, if you get a chance to help other, if somebody demand my help me, so don't say that you are a greater, so you are giving obligation to that person. Don't think in that way. You say you are lucky that you got the chance to make friendship with that person by giving just small things. That is your help. Sometime in out of 100, 5 to 10 people might cheat you. That's not the important thing. It's their matter. But don't leave any chance to help others, because that is a great opportunity God has given you to make friendship with that person, to show your good qualities. And if you help anybody in crisis or any type of crisis, roadside accident or anything, or you can say thank you, so you can carve your name on his mind, heart. That's the most important. Yes. So that is the most important thing you have to do. You might have degree, anything, but if you want to become a human beings, you have to serve the chance to help others. If somebody approaches to me for any problem, either medical problem or social problem, midnight call, I never say I'm obliging them. No, I say God has given me chance to do something for that person. It is an opportunity to make the friendship, because if you are giving help to others, it is a chance that one person will come to your friendship, and that is not a one person with a physical appearance. No, that one person with the good qualities, human qualities, one person with a social experience, one person with the maturity. It is like a blank pen drive, you don't know what is contained in there. It can be anything. So I personally consider that as a blank pen drive with what are the content, you can say anything can be there. I said, such as. So now you got a being human, what is these things? Now see this Charlie Chaplin, he says, we think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Everyone want to become a smart, either by facial makeup beauty, or by behavior pattern, or smile, pseudo smile. You consider in your batchmates, those were the close friends. But if there is one language of mouth, what I am telling you, there is other language of eyes, facial expression. That is, people are so intelligent. If you want to hide something, they will see that. So, what is the clarity? Always tell. And there are so many rich peoples, there are so intelligent people, but good human beings are very rare. So we don't want any cleverness, but we want kindness and gentleness. You always want other person to help you or talk properly. But what they do, generally in society this happens, we want to tell what is positive in us. We want to tell what I have done, what I have achieved. But they don't tell what they have not achieved. But always try what is the reality, transparency, so that one should have trust on you. So always say, if you are in negative, and say I cannot do anything, and telling the negative things or denying something on time is always better than cheating them. So always be ready what is there, because
People are very intelligent. You might be passing, your degree might be different. If somebody, your uncle or grandfather may have 10th pass or 12th pass, they might be lacking in your physical education, but in the education of society, they are more than you. So they may be either any peon or 10th pass person is there, but he has a education experience of life much more than you. They judge within a time. So always be transparent what you are. And talk with what is your heart says or what is your mind says, talk in that way. If your words are saying something, your eyes are saying something different, that crisis shows your lack of confidence. It might be the part of leadership. So always talk with confidence. When confidence will come? When what in your mind you will say that things. What in your heart that's the thing. So when you talk with the confidence and what is, don't talk double standard. If you don't like some that person, if I show the smile, it is a double standard. It will reflected in confidence. So be sure in that one. So what are the universal values that is important? Can you read anybody? First one, please. Trustworthiness. Second, Respect. respect. Third, Responsibility. responsibilities. Four, Fear. fairness. Then caring. Then citizenship. So most important first is trustworthiness. Can you tell me which is can most important in this one? Anybody? Please can tell me which is the most important? Fairness. Fairness. That is impartiality. Yeah, fairness. Anybody? Doesn't matter. Huh. Respect. Respect. No two person can be similar by face, by fingerprints. Same in no two person can be same in the attitude also. You must have to respect others' attitude. Okay. And third, you can you tell which is important? Citizenship. Very good. Any other important for anybody? Trustworthiness. Trustworthiness. Okay. Any other things? No. Responsibility. Responsibility. So these are the values. Everybody has some different aspects. You have to work on that, and you cannot say everybody cannot be Ram. There has to be some Lakshman and Bharat, and then your system will be ecosystem will complete. And you know ecosystem biology, complete natural ecosystem. So what role you are getting, you have to justify that role. Even in your office, I'll correlate it with what you are doing now, so that it is easy for you. Morning I took the class, training of 8, 9, 10 students. So my level of teaching was different because they have a different type of understanding. But I enjoy there also. Okay? These are the universal value. Pahla, what is trustworthiness? G. What is this? Values are like a fingerprints. Just I ask you, everybody is equal. So if I like something, it doesn't mean other will like the same thing. You have to respect individual differences if you want to successful in society. That's it. Now tell me which are the brands. Okay? So what happen if you grow these values in yourself, you get some type of personality. Person level one, it is called reputation. And a person reputation. When it goes to corporations, your company, it goes to brand values. You know, if you are behind something, you entered here. Now after 1 year, you can grow your personality like what you want. And one's personality will not be like others' personality. Now it's in hand. Just like say, your thoughts make your words makes your action makes your habit makes your personality makes your reputation. Yeah? It is one of the part of it. The same thing company over. Now I will take some lines. Can you tell me the one? What is the taste of India? Amul. Okay. How the Amul has created that one? It is not a one-day job. Have you seen the plant of Amul? Anand, Gujarat. I have seen that one. How much hygiene they are maintaining, you know. So like one person's behavior pattern makes personality same way. Your company is there. Like a big companies or Haldiram, you can say the Nagpur example. How much they have to struggle. Because being a winner is easy, but to maintain that winnership is a very difficult job. So this we go. Taste of India is Amul. Second, Daag अच्छा है, Surf Excel. See, if you say Daag अच्छा है, you recollect the name of Surf Excel. That is the way. When somebody says about your qualities, person should take your name. है ना? If I say Nagpur, orthopedic surgeon, one name will come. Cardiac doctor, suddenly one name. How? It is not a one-day job. Yes, sir. Then third, Taste of Thunder,
right. Then बोलो बोलो बोलिए, सोच के बाद में बताना मेरे को। ये द कंप्लीट मैन, नहीं यार ठीक है, कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी, ये इससे सस्ता और इससे कौन सा, अमेजोन, ये जिंदगी के साथ ये LIC। सी if you take a name of sentence you can collect that. This is the way. If suppose I'm take shortcut to you, if you are absent on any day na, your boss should remember you much more. He should call you, अरे कहाँ गए, ये कहाँ गए, that is the reputation you have to make. There might be 30-40 employee will be there, but you create your reputation in such a way that if you are absent on any one day, your colleague should remember you. Okay, why she is absent or he is absent, how there are so many problems in the office. That is your creation. Your presence should be unique. Person with your degree might be so many person, but your behavior pattern, your talent should be there. Like in your business we say, out of 100% your mechanical knowledge, motor knowledge or knowledge with the subject plays the role of 13%, 1-3. Remaining 87% role is played by your soft skill. That's where people, background people, why they are making a successful practice, because they have that call, they compensate. They might have less knowledge about the subject, but they compensate with the good behavior pattern. Now the trustworthiness जो बोला, ठीक है ना, trustworthiness is a trust you keep on the others. Now come to this, how you create the trust. It is not a one day job, you have to work a lot. Most you have to create your trust through your behavior pattern, ठीक है. Last time I promised our chairman sir, but I could not come. If the second time he called me, he could not come, then he said no, he is making a false promise, he will not. Next time he could not come. But last time when I was absent, then I called him because of some problem. I was absent, but next time I'll definitely do it. And trust created with the small things. It is a very easy but very tough, and that's how your psyche means. If you say something with your mouth, you have to follow it. That is one is most important thing here. Honesty. What is honesty? Honesty is the heart of your values. Most important, honesty. What is my honesty? Honesty means doing any work with 100% commitment. Yes, means 100% commitment. What you say? If somebody says you do that work, any situation you will complete it. What is the good situation, what is the bad situation, you will do 100%. What is the output? That one is honesty. If you say that I will do these things, means your boss will be 100% relaxed. She said she has commitment, she will do it. That type of trust you have to build. Yeah, na? It is a differentiate from you from the other person. Honesty, okay? That required your truth. You should be true, you should be sincere. Sincerity has to be there. Sincerity means if you took some work, you have to cannot stop without completing the work. Whatever the negative things or situation will be there. If you accept to do, suppose if you have started one work here, you could not able to do 5 o'clock. You should be ready to do work at either 8 o'clock, 9 o'clock, 10 till the work is over, provided your surrounding situation should offer it. Okay? Suppose if you do any operation, it is a mechanical procedure, some wrong will happen, na happens. If we want to complete, start at 12 o'clock, it should complete by 4 o'clock. But some wrong thing happens because of anesthesia problem or others. We cannot leave it. We have to finish it operation till the time. Time has no limit. It makes end till 10 o'clock, 12 o'clock, but we finish it. You cannot say time is over, so we have stopped it. That is your honesty in the work. Okay na? And frankness. Frankness म्हणजे my life is open book. कुछ भी छुपाना नहीं है, जो है एक चीज नहीं जमती तो नहीं जमती. ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी कंप्लीट 100%, है ना. अगर मेरे फादर ने मेरे को एक चीज़ बोला, मैं आपको इजीली बोल देता हूँ. व्हेन आई फॉट फॉर माय 10th एग्जाम रिजल्ट, 10th or 12th, I don't know that one. So I got less. I thought after exam I will score less mark in one important subject. That is my language, Marathi language. My father said one thing, अगर आपको हर चीज़ मिल जाती है आप चाहें तो आप भगवान हो जाते. बोले
यू आर ह्यूमन बीइंग, हर चीज़ आपको नहीं मिलेंगी, बट आपको कर्म करना नहीं छोड़ना है। यहाँ पे भी हर चीज़ आपको हर नहीं मिलेगा, अगर आप जो भी टेंडर भरेंगे हर चीज़ नहीं मिलेंगे, बट अपना काम को करना है। और यहाँ आगे आएगा वो कि आपको अपना क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं छोड़ना है। अगर आपको अपने बॉस ने डांटा, हो सकता है कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, या आपका कलीग कुछ अलग चीज़ आपको उनको टेल, तो दैट टाइम यू डोंट हैव टू लूज योर पेशेंस, ऐसा है। तो दैट इज़ अ ऑनेस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ गए ना आपको ऑनेस्टी में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? सच रहना है, ट्रूथफुल रहना है, काम में सिंसियर चाहिए, काम करना है, और फ्रैंकनेस चाहिए, कुछ छुपाना है, जो है, जो नहीं है नहीं है। तो अभी सामने के विषय बैठेंगे ना, अगर आपने कुछ चीज़ छुपा है, अगला आदमी आपका बॉस है, वो बॉस का मतलब आपके स्टेज से जा चुका है ना। अगर 8 का लड़का 10 का लड़का है, या आपका सपोज हमारे बच्चे अभी 10 में है, हम भी कभी 10 में रह चुके ना। 10 में रहने का मतलब ये नहीं होता पढ़ाई, कलीग्स के साथ रिलेशंस, जो एज में बाकी चीज़ें जो दिमाग में घुसती है, हमने भी देखा है। अगर हमारे बच्चे छुपाते हैं तो हम लोग पकड़ लेते हैं, पकड़ के उनको बराबर प्रॉपर टाइम पे बता देते हैं। इसका सेम यहाँ अप्लाई करता, आप जिस स्टेज में, आपके बॉस भी इस स्टेज से जा चुके हैं, उन्होंने कहीं तो जॉब किया है, वो भी डिग्री हुई है, उसमें अगर आपने कोई चीज़ छुपाया, थोड़ी देर के छुपा लेंगे, वो अगर बॉस के आपके रिलेशन क्लियर होगा तो आपको बोलेंगे, या फिर नहीं भी बोलेंगे, वो बहुत बात जान देंगे, बट वो दिमाग में याद रखेंगे इसने ये चीज़ बोला, तो आपका ट्रस्ट वर्दीनेस कम होगा। इसलिए छुपाइए मत। अगर कोई कहीं घर में प्रॉब्लम होगा तो बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात, मेरे एक स्टाफ है, एक मान लो, और कोई आर्गूमेंट हुआ तो कभी भी आर्ग्यू नहीं करते, सर मेरे से गलती हो गई, इसके बाद नहीं होगी। अगर पोलाइटली कोई एक्सेप्ट करता है, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। अगर आप आर्ग्यू करते हैं तो आप गलत पे गलत, गलत पे गलत करते। जैसा एग्जाम फाइनली आपने वाइवा दिया होगा, वाइवा का क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, आपको आंसर में अगर 2 पॉइंट का आंसर है, आपने 3 पॉइंट दे दिया, 2 करेक्ट दिया, तीसरा पॉइंट गलत दे दिया, वो गलत पॉइंट को एग्जामिनर पकड़ता और उसके ऊपर और क्वेश्चन पूछता, और आपका पूरा मैटर सोल्व है ना। बिकॉज आई एम ऑल्सो मास्टर, तो आई नो स्टूडेंट्स क्या करते हैं। ये चीज़ आपको करना है। ये लेक्चर माइट भी, आपने ऐसे कितने, यू माइट हैव हर्ड सो मेनी लेक्चर्स, आई एम नॉट डिनाइंग, बट आपके अभी इनको भी बोला मैं, आपके सोच में थोड़ा बदल आना चाहिए। स्मॉल चेंज भी चेंज हुए तो इट इज़ वर्क फॉर यू। आई एम जस्ट गिविंग माई 1 to 1.5 hours here, but everybody is sparing that much time. So your time is more important for me. You are sparing your valuable time, and your boss is sparing your valuable time, working time. That is a greatness. Okay. Then integrity. What is my integrity? Is equally important. Integrity का मतलब होता है, what is the meaning of integrity? Can you tell me? What does that word mean? This topic is slightly philosophical. थोड़ा बोर हो सकता है, बट अगर आपने ग्रास्प किया इज वेरी गुड। व्हाट इज माय इंटेग्रिटी? कैन यू टेल मी? ये बहुत इंपॉर्टेंट विश्वास बैठने के लिए, ऐसे नहीं मालूम। फ्लैश मारने का एग्जैक्ट उल्टा है ये वर्ड। कोई फ्लैश मारता ना, मारते हैं कोई फ्लैश, उसका एग्जैक्ट उल्टा है। इंटेग्रिटी का मतलब होता है, अगर आपने कोई चीज़ का विषय कमिटेड है, यू आर डूइंग दैट थिंग, आप कर रहे हैं, आपका बॉस बैठा था, आप वो चीज़ कर रहे हैं, जिस दिन बॉस उठ के दूसरी जगह गया, वो चीज़ छोड़ के आप दूसरी चीज़ कर रहे हैं, फिर बॉस है, फिर से वो चीज़ कर रहे हैं, है ना। तो वो इंटेग्रिटी का उल्टा है। इंटेग्रिटी मतलब, अगर आई थॉट कि आई एम डूइंग स्टडिंग दैट वर्ड, ये लाइब्रेरी है, सपोज आई एम स्टडिंग, फिर या कोई रहे नहीं, मेरे कोई देखे नहीं देखे, आई एम डूइंग माई वर्क। If you are committed for some work, you will continue that work till the completion of the work, irrespective of what is the problems you are getting or what is the social changes you are getting. है ना। फ्लैश मारने वाले क्या करते हैं, सामने फ्लैश मारते, वो बॉस गया तो दूसरा काम करते, पक्का ना। तो ठीक है, वो करते होंगे, लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं आता ना। एग्जाम्पल, स्टूडेंट का एग्जाम्पल देता हूँ मैं। स्टूडेंट को पढ़ाई करना है, ठीक है ना। पढ़ाई करते तो बहुत बार क्या होता है, शॉर्टकट स्टडी। एक लड़का साल भर पढ़ाई करता, उसको हर टॉपिक इक्वल आता, और तभी ने 2 साल के बाद भी उसको आता है, साल भर पढ़ाई। मेरे स्टडी तपस्या और दोस्ती है मेरे लिए। स्टडी इज नॉट अ ड्यूटी, बुक्स आर माई फ्रेंड्स, और स्टडीज, आज इवन टुडे आई एम स्टडिंग, आज भी पढ़ा कुछ तो भी मैंने। और दूसरा लड़का क्या करता है, साल भर कुछ नहीं करता, एग्जाम के दिन में आता, 2-3 दिन बोला, सीनियर को पूछता क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पढ़ लेता, ठीक है। ये भी स्कोर करता, वो भी स्कोर करता है, ये 40 में से 38 स्कोर करता और 32 करता है, बस ओके। बट देखो बाहर रिजल्ट क्या होता है, आई एम गिविंग योर एग्जाम्पल। आफ्टर 1 month, ये जो एक दिन में पढ़ने वाला लड़का है ना, वो सब चीज भूल जाता है।
बट जो साल भर पढ़ता है उसको याद रहता है, और वो जो पढ़ता है उसको याद रहता है, उसको प्रोफेशनल लाइन में काम में आता है। जो डॉक्टर लाइन, मेडिकल लाइन में कोई भी नॉलेज कभी भी काम में आता है, बिकॉज पेशेंट कोई भी आ सकता है। यहाँ पे डिफरेंशिएट होता है, जो गुड डॉक्टर जो होता है ना, बहुत डिफरेंशिएट होता है छोटी बातों में। कॉमन बात तो कोई भी करता है, जो ऑड टाइम आती, ऑड बात आती है, ये लोग नहीं कर सकते। इसलिए इंटेग्रिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर रेपुटेशन। पर्सन हु इज वॉचिंग यू विल बी देयर और नॉट, यू हैव टू कंटिन्यू योर वर्क। समझ में आ रहा है? अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो तो पूरा अच्छे से पढ़ो, कोई देखना नहीं पड़ा। अगर बुक कोई आदमी देख रहा है इसलिए बुक पढ़ोगे, वो आदमी जाने के बाद बुक के अंदर का मोबाइल पढ़ोगे, देखोगे, तो फाइनल आउटकम में आपके रेपुटेशन में फर्क पड़ेगा। इसलिए इंटेग्रिटी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स आप कितना रिलायबल हो, विश्वास कितना है आप पे। समझ में? रिलायबिलिटी म्हणजे जो चीज़ आप कर रहे हैं उस चीज़ को अगले आदमी ने आप पे पूरा विश्वास रखना, उतना रिलायबिलिटी क्रिएट करना चाहिए। ये सब टर्म एक जैसे लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि वो चीज़ छोड़ के किसी और पर ध्यान नहीं देने का, भला कुछ भी हो। जब तक हाथ में चीज़ पकड़ी तब तक एंड होने तक ध्यान नहीं देने का। रिलायबल है ना, रिलायबल मीन्स आप अपना ऐसा क्रिएट करोगे अगला आदमी आप पे रिलायबल हो जाए पूरा। तो उसमें आपकी इंटेंसिटी, फोकस हैज़ टू बी देयर, टाइम हैज़ टू बी देयर, और ऐसा काम करना उसमें कि कोई और आपका ध्यान नहीं जाए। डिस्ट्रैक्टर्स शुड नॉट टच यू। बहुत बड़ा हर जगह डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। और इतना अच्छे से काम करना कि जो आपको सुपरवाइज कर रहा है बॉस, वी शुड हैव 100% ट्रस्ट। जैसा मैंने ब्रांड जो बोला ना, अमूल का ब्रांड ट्रस्ट होता है, या रिलायबिलिटी। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने जिस तरह से काम किया वो मैक्सिमम इज रिलायबल पर्सन। अगर कोई बोलेगा मोदी ने इतना करप्शन किया, कोई भी बात मानेगा? नहीं मानेगा। कमिटमेंट, मोदी ने कमिटमेंट किया, वो काम किया वक्त से, तो इतना जोरदार है कि ही मैक्सिमम परसेंट ऑफ लोगों का ही बिकम रिलायबल एज कम्पेयर टू अदर पॉलिटिशियन ऑफ एनी पार्टी। इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, है ना। ये चीज़ मैं एग्जाम्पल भला कंट्री का दे रहा हूँ, लेकिन ये हर जगह काम होती है। एग्जाम्पल, आप घर से निकलते हैं, सबसे पहले पेरेंट्स, यू हैव टू बी रिलायबल विद योर पेरेंट्स। समझ गया ना? अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि आप आते आते ये चीज़ लाना मार्केट से, अगर आप एक बार दो बार नहीं लाएंगे तो पेरेंट्स का विश्वास उड़ जाएगा। बट अगर आप लाएंगे एक दो बार, तीसरे बार जब पेरेंट्स आपको बोलेंगे ये चीज़ लाना, तो दे 100% रिलायबल ऑन यू। ये तो इसलिए बोला है ना, होना ही है ना। सो ये चीज़ अचीव करना है। पहला है पेरेंट्स घर में, बाद में सिबलिंग्स, है ना, एज अ बीइंग ह्यूमन वाला कैरेक्टर। तीसरा बाहर निकलते हैं तो आपके फ्रेंड्स लोग। चौथा आपका ऑफिस या स्कूल। पांचवा नेबर्स। सातवां आपके ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आप किस तरह से काम करते हैं, उसमें रिलायबिलिटी होती है। कोई के काम इतना अच्छा करता है कि लोग उसके पीछे लगता है, अरे ये पोस्ट ले, ये पोस्ट ले, ये पोस्ट ले। कोई के काम इतना खराब करते हैं कि वो कितना मांगते पोस्ट, लेकिन लोग देते नहीं। दैट इज योर ट्रस्ट वर्दीनेस। और लॉयल्टी। लॉयल्टी यानी मतलब क्या होता है? लॉयल्टी यानी जो चीज़ आप कर रहे हैं, लॉयल, आप ये ऑफिस के प्रति लॉयल हो, या आप आपके चेयरमैन के प्रति लॉयल हो, उसका मतलब क्या होता है? होता ना, भला एक जैसे टर्म में क्या डिफरेंशिएटिंग क्या पॉइंट है? लॉयल एंड क्या होता है कि जो उन्होंने बताया, जो ऑफिस के सीक्रेट होंगे, कंप्यूटर के सीक्रेट होंगे, आपको उस बताए, आप वो किसी और को नहीं बताएंगे। दैट इज द सीक्रेट, दैट इज लॉयल्टी टुवर्ड द पर्सन। या आपके जो रूल्स रेगुलेशन ऑफिस के अंदर में है, वो रूल्स रेगुलेशन यू विल नॉट टेल टू द अदर्स। दैट इज लॉयल्टी। लॉयल्टी नॉट इन टर्म्स ऑफ द गुड डेज, इवन बैड डेज। लॉयल्टी, अगर ये ऑफिस छोड़ के गए तो भी आप उसके उसूल लॉयल रहेंगे। आप जा सकते हैं दूसरे ऑफिस में, अगर बड़ा ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की चीज़ें बाहर नहीं, यहाँ की चीज़ें यही छोड़। दैट इज लॉयल्टी। अगर आपकी लॉयल्टी है तो दे विल कीप यू व्हाट आर द सैलरी यू विल एक्सपेक्ट। दैट इज योर अचीवमेंट। समझ ना? लॉयल्टी, ये सब क्वालिटीज है, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, रिलायबिलिटी, लॉयल्टी मिलके यू बिकम अ ट्रस्ट वर्दीनेस। और आज के दिन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रस्ट वर्दीनेस। आप किसी को अच्छा ट्रेन करो, अच्छा होने के बाद उसको दूसरा ऑप्शन अच्छा मिला तो दे किक आउट। दैट इज एनी ऑर्गेनाइजेशन का बिगेस्ट प्रॉब्लम है, रिटेंशन ऑफ क्वालिटेटिव स्टाफ। इवन माय हॉस्पिटल सेम थिंग आई एम एक्सेप्टेड। अब उसको क्या करना क्या नहीं करना, सर्विलिटी से बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस के सेमिनार से उसमें बताते हैं, यहाँ मैं नहीं ले सकता, बिकॉज जैसे हमें ये सब लेडर क्रॉस करें, सबसे आखिर में बिजनेस लेडर है ना आपको।
वो लिमजा ने क्रॉस किया, उसमें बताते फिर कैसे करना, क्या करना, ऐसा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए, लॉयल्टी, रिलायबिलिटी, ऑनेस्टी। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट। व्हाट इज माई रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट मीन्स अगले आदमी का वर्थ, डिग्निटी को मेंटेन करना। बहुत सिंपल है। व्हाट इज रिस्पेक्ट? जो अगला, जब इफ आई रिस्पेक्ट हर मीन्स उसकी जो डिग्निटी, उसका वर्थ आई मेंटेन इट। इसके लिए आप बोले बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, सिर्फ बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट इज योर क्वालिटी, जेन्युइनिटी। रिस्पेक्ट किसी का भी कर सकते हैं, बड़ों का तो कोई भी करता है, अपने से छोटे का रिस्पेक्ट करो, दैट इज अ ग्रेटनेस ना। कोई भी आदमी की असली समझ में आती जब वो अपने से छोटे से बात कैसा करता है ना, और क्राइसिस में कैसे बात करता, जब उसका मूड ऑफ होता तब वो कैसे बात करता। अगर दोनों में खुद को उसको मेंटेन किया तो दैट इज द ग्रेटनेस। तीसरा, अच्छे मूड में कोई भी रिस्पेक्ट करेगा, जब आपका मूड खराब है तभी रिस्पेक्ट करो, है ना। इसलिए बहुत जरूरी है रिस्पेक्ट लिए बात करें, दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन यू आर अ गुड ह्यूमन बींग्स। सो ऑलवेज टॉक रिस्पेक्टली, ऑलवेज टॉक विद द एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है ना, ऑलवेज टॉक विद द प्लीज, थैंक यू, ठीक है ना। इसमें आई डिफरेंट वन पॉइंट, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम्स, जानबूझ के नहीं पूछा, आई वांट टू डिफरेंशिएट यू पीपल, ऑल आर इक्वल फॉर मी, अदरवाइज बाकी ट्रेनर के नाम पूछते फ्री करने के लिए, बट आप एक मिक्स से फैमिलियर हो, इसलिए आई एम नॉट इन। और एग्जाम्पल बता, मैं लॉयंस में देखा, जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं ना, मारवाड़ी है, सिंधी है, जो भी, उनमें आप बात करने का ढंग देखना, वो अपने बच्चों से भी बात करने का ढंग देखना। ऑब्जर्व, सोसाइटी इज देयर, यू आर, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम प्राउडली से आई एम स्टिल स्टूडेंट, आई वांट टू लर्न मोर। अब और वही अपना जो मराठी कैटेगरी है ना, उनका बात करना ढंग देखना, बहुत डिफरेंस होता है। ये डिपेंड, आप जो जिस दिन क्रॉस करोगे सामने वाले की अच्छी क्वालिटी सुनोगे, उस दिन आप उनके लेवल पे जाकर बैठोगे, और समझ कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने को इंटेंसली ट्राई करना है। तो उसमें जो मैं आपको बोला, सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्ट। किसी को भी, जो वो अपने बेटों से भी बात करते हैं ना, आई सीन द मार्केट, दे टॉक रिस्पेक्टली, बिकॉज उनका एक्सप्लेनेशन मैंने पूछा क्यों, तो बच्चों ने भी माँ को रिस्पेक्ट, फादर को रिस्पेक्ट देने को ना, इसलिए वो पहले बच्चों को रिस्पेक्ट देते हैं। जैसा मैंने JCI में एक चीज़ देखा हो, JCI प्लैटिनम में एक पर्सन था 6 साल पहले, सॉफ्टवेयर कहता है, नाम भूल गया अभी, उधर था, उनका बेटा JCI जूनियर विंग का प्रेसिडेंट हुआ, और ये आदमी सीनियर विंग का प्रेसिडेंट था। तो वो जूनियर विंग का, वो अपने बेटे को नाम से बोल सकता था, बट जब JCI की मीटिंग होती थी, वो अपने बेटे को सर बोलता था, है ना। फिर मैंने उसको अकेले में पूछा, मेरे को अच्छा लगा था, कुछ आई एम स्टूडेंट, आई वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम अदर्स। बोला ऐसा क्यों? तो बोले उस समय वो प्रेसिडेंट है जूनियर विंग का, आई हैव टू मेंटेन हिज डिग्निटी। इसलिए आपके रिलेशन कुछ भी हो, योर बॉस मे बी योर रिलेटिव, मे बी एग्जाम्पल कहीं भी, बट यहाँ पे वो आपका बॉस है, यू हैव टू मेंटेन द रिस्पेक्ट। और आपके बड़प्पन की बहुत इंपॉर्टेंट निशानी है, योर ग्रेटनेस इज योर लॉयल्टी एंड योर ऑनेस्टी एंड योर रिस्पेक्ट। जितना आप दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, उतना आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। ऐसे दुनिया का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना न्यूटन का, टू एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट। जितना पोलाइटली अगले से बात करेंगे, उतना उसका नहीं आपका बढ़ता है। जैसा और एक स्टूडेंट लाइफ का एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, अगर आपको टॉपिक में किसी को अच्छे से समझ रहा है, फिर एक्सपर्ट इन दैट वन, आई यूज्ड टू अप्लाई व्हेन आई वाज पिक, इफ समबडी नीड दैट वन, हेल्प हिम इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज हिज क्वालिटी। किसी को जरूरत अपनी है, जैसे हम लोग, आई एम ट्राइंग दैट वन, अगर somebody needs me, call me for any work, even training रहो, कुछ भी रहो, I will change my patient schedule, I will come here. It is because if I am coming here, I'll learn something extra from here. ऐसे तो always help others. Help करने में किसको, if you teach somebody ना, that concept get more clear in your mind. पढ़ाई का तरीका आप लोग पता नहीं, I don't know what you are studying or not, but study का एक नियम है, जो साइकोलॉजी आई स्टडी इन UPSC एग्जाम्स, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लर्निंग इज टू टीच अदर्स। रिहर्सल इज वन ऑफ द स्टेज ऑफ स्टडी। रीडिंग इज डिफरेंट, स्टडी इज डिफरेंट। रीडिंग इज पैसिव, स्टडी इज एक्टिव। स्टडी में व्हेन यू स्टडी सम टॉपिक दैट कीप योर माइंड व्हेन क्लोजिंग द बुक एंड दैट रिहर्स और राइट और टेल समथिंग, दैट वे इफ यू आर डूइंग दैट वन, इट इज हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज द रिस्पेक्ट द क्वालिटी, यू हैव टू रिस्पेक्ट द सिविलिटी, कर्टेसी, डिसेंसी। मैं बोला ना, कर्टेसी यानी आप लॉयल, यू हैव टू बी लॉयल विद द अदर्स, एंड टॉलरेंस। रिस्पेक्ट करना इतनी इजी बात नहीं है। कोई आपको गाली मारा मालूम है, पर स्टिल आप रिस्पेक्ट करते हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया लॉयंस में।
हमारे बहुत लीडर्स, उनको मालूम है ये आदमी गाली मार रहा है। इवन आई ऑब्जर्व दैट इन म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफ मुंबई। ये बहुत अच्छा तरीका है ऑर्गेनाइज चलाने में। अगर आपको कोई आदमी गाली मार रहा है, आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको मालूम नहीं करने देना कि आपको मालूम पड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसको यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। आप उसको बहुत पोलाइटली लो, और पोलाइटली लो, इतना पोलाइट लो कि उसके मन में आपके लिए जो कटुता है ना, इट शुड डिजॉल्व। और होता है। ये जो बड़े ऑफिसर्स लोग जो बैठे रहते हैं ना, उनकी क्वालिटी के ग्रुप को लेके चलना है, छोड़ नहीं सकते। एक आध आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको बता नहीं सकते क्रिटिसाइज कर रहा है, बट उसको और प्यार से और रिस्पेक्ट ले लेते हैं, ताकि टॉलरेंस और बढ़ाते हैं अपना। ऐसा नहीं कि ये मेरे को गाली मारा तो इसको निकाल के फेंकू, नहीं करते। होता ना, कभी अच्छा स्टाफ भी रहता है, ही माइट क्रिटिसाइज यू बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। तो उसका क्रिटिसिज्म को दूर करना है, उसका निगेटिविटी को दूर करना, आदमी को दूर नहीं करना। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। टॉलरेंस आना चाहिए। कोई कुछ भी करे, आपके मन में उसका आना चाहिए। रिस्पेक्ट मिलने आपको पहले देना पड़ता लेने के लिए। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स इफ यू एसेट समथिंग यू हैव टू मेंटेन इट। कोई काम है ना, जैसा लाइक अकाउंटेबिलिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम इज। तो इसमें आपको अकाउंटेबल का मतलब होता है उसकी जवाबदारी आपको लेना पड़ेगा। आपने देखा क्या मोदी को, वेन इसे क्या बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन डिक्लेयर किया, खुद ने किया, अरे शाम को 8 बजे। बाद में ये तो पॉजिटिव लिया, निगेटिव में जब फार्मर का जो एजिटेशन हुआ था उस समय इसने अपने जो नियम जो बनाए थे संसद भवन ने, उसको कैंसिल किया। तो उसने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को नहीं भेजा, खुद बोले मैं जवाबदारी लेता हूँ, मैंने अच्छे काम किया, एक हाथ मेरे से गलती हो सकती है, या मैं फार्मर को कन्विंस नहीं कर पाया, मैं वो लॉस पीछे ले रहा हूँ। याद है ना, कभी कभी लीडर्स को फेलियर को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। दैट इज योर अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबल इसमें आपको अपना बेस देना ही पड़ता है। बाद में परसिवरेंस, यानी जब तक वो चीज़ पूरी नहीं होती उसको छोड़ना नहीं। यहाँ पे भी एक हाथ फाइल आपने लिया, प्रोजेक्ट हाथ में लिया, तो उसको आप छोड़ ही नहीं सकते। भले अच्छा रहे, बुरा रहे, रात रहे, दिन रहे, यू डोंट हैव टू लीव जब तक वो कंप्लीट नहीं होता। परसिवरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर द स्टूडेंट्स। अगर पढ़ाई के पीछे लगे तो कुछ चीज़ दिखती नहीं है ना। एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था कि ड्रीम वो है जो दिन में आपको सोने नहीं देते। जब तक वो पूरे नहीं होते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। कोई भी ये बात नहीं बोल नहीं सकता कि मैं बड़ा हूँ। ऑलवेज कितना ही बड़ा रहा, मैंने आपको बोला ना, आई एम लर्निंग स्टेज। आई माइट भी आपसे थोड़ा बहुत ज़्यादा मेरे को आता हूँ, लेकिन बहुत नहीं आता। मेरे स्टूडेंट का मैं जो क्लास लेता ना, मेरे जो डेंटल स्टूडेंट जो फाइनल ईयर्स के, तो उनको मेरा पहला सेंटेंस रहता, वो भी दे आर 18-19 ईयर्स ओल्ड, उनको हर चीज़ आती, पूरी समझती। मैं उनको बोलता सिर्फ मेरे सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे से आपसे मेरे को है, बाकी यू आर इक्वल टू मी। जब तक आप इक्वलिटी का रिलेशन नहीं करोगे तब तक आप कुछ पढ़ नहीं सकते। ठीक है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन जो क्वालिटी फेयरनेस का बोला, ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। फ्रॉम बॉस टू एम्प्लॉय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी। अगर आपका बॉस या कहीं आपके अलग कलीग के साथ अगर पार्शलिटी करता है तो यू विल नेवर लाइक इट। आदमी बस पैसा नहीं रहता चलता है, बस नोबडी लाइक इनजस्टिस एंड इंसल्ट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा एक बार नहीं चलता है, बट यू हैव टू मेंटेन द रिस्पेक्ट। सो इसमें इम्पार्शियलिटी बहुत जरूरी है, इक्वालिटी जरूरी है। इम्पार्शियलिटी मीन्स यू हैव टू मेंटेन जो भी सिलेक्शन का प्रोसेस शुड बी फेयर, ओपन मेथड चाहिए, फेयर क्राइटेरिया फेयर चाहिए। कहाँ पे किसको प्रमोशन मिला ऑलरेडी मालूम होना चाहिए, ये टीम टिकाने का फायदा होता है। और इक्वालिटी मीन्स ऑल शुड बी इक्वल। यू कैन बी डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर सम क्वालिटीज हियर, बट ओवरऑल बिहेवियर पैटर्न में इक्वल। अगर एक हाथ स्टाफ कमजोर भी है तो यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस, रिस्पेक्टिंग द आइडियज, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर कोई एक जैसा नहीं होता, बट आपको टीम चलाना है, यू मस्ट हैव टू मेंटेन इट। देन केयरिंग इसमें लव एंड एम्पैथी है। केयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट ऑफ वैल्यूज। केयर करना मीन्स क्या करना, केयर करना मीन्स दूसरे के लेवल में जाकर उसको मॉरली उठाने की कोशिश करना। जैसा माँ को मदर केयर द चाइल्ड, कभी चाइल्ड को बोलती क्या तू छोटा तेरे को क्या आता है, उसके जाती है, उसके जैसी बात करने की कोशिश करती है और उसको वहाँ से अपलिफ्ट करती है। ठीक है, दैट इज द केयरिंग। और उसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको हर जगह जो आपका टोन आता है, इट शुड बी केयरिंग। अगर रोड साइड में कुछ पड़ रहा है तो अगर आपको पॉसिबल उसको हेल्प करो, केयर करो। वो केयरिंग आपको लाइफ में कब काम में पता नहीं, बिकॉज वन पर्सन इज नॉट इक्वल टू अदर, इट इज नॉट पॉसिबल एवरी एंगल। बट जो बड़ा है उसका काम है कि उसको नीचे के लेवल में जाके उसको केयर करके वापस लाना है।
और एम्पैथी, एम्पैथी को पढ़ाऊंगा ना आपने, एम्पैथी इन कम्युनिकेशन, एम्पैथी इन लीडरशिप पढ़ाऊंगा। एम्पैथी का मतलब है अगर आपका एक आधा स्टाफ लेट यहाँ आ रहा है, उसको डायरेक्ट डांटते हुए कि आप लेट क्यों आए, आपके यहाँ पर लगा, वो लेट के उसका कारण ढूंढना है। अगर कारण जेन्युइन होगा तो उसको नहीं डांटने का। समझ में आ रहा ना? उसको बोलते हैं टू कीप योर फुट ऑन द अदर शूज। उसका जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है? कभी कभी गाड़ी पंचर हो सकती है, इट इज ए जेन्युइन रीजन। सो आप उसको कंसिडर करेंगे तो अपनी एनर्जी और देगा। एम्पैथी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। एम्पैथी इज द मोस्ट क्वालिटी ऑफ योर लीडरशिप क्वालिटीज आना चाहिए। जैसा कोई आदमी अगर आपसे खराब बात कर रहा है, हो सकता ना, बट खराब जानबूझ के कर रहा है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर में करता, उसको रिप्लाई नहीं दो, शांत रहो, फिर उसको पूछा ऐसा क्यों कर रहा था। कभी कभी उससे घर में प्रॉब्लम हो जाता, वो डिस्टर्ब हो जाता, उसके वजह से खराब बात करता है, उसकी इच्छा नहीं रहती। तो आपको इसको बोलते हैं एम्पैथी अंडरस्टैंडिंग। वन इज सिंपैथी है, सिंपैथी यानी दूर से रास्ते के साइड में वो गरीब लोग जा रहे, सिंपैथी। एम्पैथी यानी वहाँ जाके उसको एहसास करना वो क्यों कर रहा। इट इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए सक्सेसफुल लीडरशिप, ऐसा है। और उसके बाद है सिटीजनशिप। इसका फाइनल रिजल्ट है सिटीजनशिप, बीइंग ह्यूमन, है ना। इसका मतलब होता है अगर आप अच्छी क्वालिटी ले रहे हैं, ये सिर्फ ऑफिस में काम नहीं आएंगे, ये चीज़ें सोसाइटी में दिखने होगा। अगर आप जेसीस में हैं होपफुली, या अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उससे आप वैल्यूज सीख रहे हैं। अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ाई किया तो यहाँ काम में आएंगे कंप्यूटर की, बड़े वैल्यूज जो मैंने बताया, ट्रस्ट वर्दीनेस, केयरिंग, रिस्पेक्ट, ये आपके घर से लेके सोसाइटी में हर जगह आपको बाकी लोगों से डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग बट दे डू द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। तो उसमें सबसे है ओबिंग द लॉज एंड फॉलोइंग द रूल्स। रूल्स मीन्स क्या? अपना रूल्स क्या है कि लेफ्ट साइड से गाड़ी ड्राइव करना, आप राइट साइड से नहीं कर सकते। तो पहले आप फॉलो करो, फिर दूसरे को बताओ, है ना। फिर दूसरा काम क्या होता है यहाँ पे, उसके साथ साथ जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे अच्छे से बात करो, वाट एवर बी हिज लेवल। सोशली कम हो सकता है, इकोनॉमिकली कम हो सकता हो, ब्रेन वाइज कम हो सकता है, बट आपको प्यार से बात करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि इसके साथ साथ सोसाइटी एनवायरमेंट। हम दूसरे को बोलते हैं पानी बचाओ, पहले आपने बचाना चाहिए। अभी इसको मैं यहाँ नहीं बोल सकता, बट आई हैव दैट एक्सपीरियंस वाई वाटर इज इंपॉर्टेंट, वाई एनवायरमेंट इज इंपॉर्टेंट। आपको देखा होगा एनवायरमेंट इज वाई इंपॉर्टेंट, ट्री प्लांटेशन क्यों जरूरी है। अभी आप अगर 2 व्हीलर्स जा रहे थे, आपको समझ में रास्ते में क्या हो रहा है, जहाँ पे एक आध जगह पेड़ है तो उसका इंपॉर्टेंस समझता, आपको गाड़ी नीचे रखते हो तो ये। और क्लीनलीनेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। यू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ योर सोसाइटी। जब आपका काम तो आप कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पर खाली टाइम मेरा संडे मिला, यू हैव टू केयर योर नेबर्स। सोसाइटी में जाइए, सोसाइटी के प्रोग्राम में जाइए और उसमें शो योर प्रॉपर क्वालिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा व्हाट आई एम टेलिंग, इट माइट वेरी स्मॉल थिंग्स, आपको सबको पता है, बट क्वेश्चन पता नहीं तो क्वेश्चन इंप्लीमेंटेशन में होता है। हर चीज़ हर एक को पता है, तो कितने फॉलो करते हैं, है ना। हमने मोदी को स्वच्छता नहीं बोला, हमने मोदी को देखा है जब वो कोई गिफ्ट का पैक अनरैप करके जो पॉलिथीन अपनी जेब में भरा, देखा है आपने कभी वीडियो में। छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं, इसलिए उसको रोल मॉडल बोलते हो आदमी को। वो आदमी को पीएम है, पीएम बहुत सारे हो गए इंडिया के, उनकी पोजीशन क्यों अलग है, बिकॉज उनका सोच हरदम देश के प्रति रहता, वो उसके खुद के फैमिली प्रति नहीं था। बाद में इज हार्ड वर्किंग, नोबडी कैन बी हार्ड वर्कर, कमिटेड पर्सन है, प्लानिंग है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने भी उनका भाषण देखा क्या जो राजस्थान में दिया था, आई वॉज शॉक्ड पर्सनली। ऐसा भाषण इंडिया जैसे टॉलरेबल कंट्री का कोई आदमी दे सकता है, आई कांट इमेजिन। डायरेक्ट हिंदी में और डायरेक्ट फॉरेन पूरे कंट्रीज को डायरेक्ट मुझे वर्ड्स में बता दिया। दैट इज अ कॉन्फिडेंस, जो साइको फेयर बोलते हैं ना, वारफेयर, दिमाग पे लड़ना, वो उसने किया। तो दैट इज अ क्वालिटी। ये क्वालिटी हर एक को पीएम नहीं बनना है, आप जिस फील्ड में हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जिस फील्ड में हो का मतलब होता है, अगर आप घर में हो तो मदर फादर ऐसा व्यवहार करो कि वो आप पे नाच करे, दे शुड बी प्राउड ऑफ यू। मुझे ऐसा बच्चा किसी को नहीं मिला। अगर आप पेरेंट सिबलिंग से साथ में हो तो योर रोल शुड बी समथिंग डिफरेंट। अगर आप कहीं शादी में जा रहे हैं अपने फैमिली के, तो आपका बिहेवियर पैटर्न हालत दिखना चाहिए, बिल्कुल सिंपल। मराठी एक मन है ना, हलक्या हाताची काहीतरी हलक्या काय म्हणतात त्याला, बॉडी म्हणजे कभी मूवमेंट करना, पानी लाके जो दौड़ के आके पानी लाते हैं, किसी का काम करते चाय बना फट के चाय पे जाते हैं, दैट रोल। आप जितना सॉफ्टवेयर काम करोगे, जितना छोटा बन के काम करोगे, उतना ही बड़े बनते हैं। आपने फिर से मोदी का नाम लिया, आपने मोदी को मेरे इसमें देखा, इसने देखा का जो
श्री राम का जो हुआ उसमें जो काम करने लोगों का सत्कार किया, बाद में एक दिन क्या वो लेबर लोगों का जयंती रहती है, विश्वकर्मा जयंती, लेबर के साथ में बाजू में बैठा, याद है क्या? उनके लिए चेयर रखी थी, चेयर में रहना बात करा। दिस इज योर ओन वर्क, आपकी आइडेंटिटी पैदा करता है छोटी छोटी चीज़ों में। तो वैसा करना जरूरी है। अगर आप अपने बॉस को तो बहुत तारीफ करते हैं, एक आध तारीफ आपकी इन्फीरियर लोगों से करो, वो उतना खुश हो जाते हैं, बाद में वो कभी बोलते। जैसे यहाँ पे कोई स्वीपर होगा, आई ऑब्जर्व, या ये है क्या बोलते हो वो जो गाड़ी रखता ना, उसको प्यार से बात करो, या किसी ने कुछ दिया उसको थैंक यू बोलो, किसी को मांगना है प्लीज़ बोलो आपके लैंग्वेज में। सच में जो आप उसमें जो आपका वाइब्रेशन जाएंगे ना, उससे रिटर्न वाइब्रेशन मिलेंगी, तो एनवायरमेंट बहुत अच्छा बिकम, यू बिकम अ पॉपुलर। ऐसा है। सवाल पीएम बनने में या सेनाध्यक्ष बनने में नहीं है, जो रोल आपको दिया है उसमें अच्छा रोल। इसलिए मेरे लाइफ का इंग्लिश का प्रोवर्ब है, बी बोल्ड इन व्हाट यू स्टैंड फॉर। चीज बड़ी छोटी नहीं होती, जो आपको करना 100% करो, आप इसे दूसरे करने को नहीं आना। दूसरा एक प्रोवर्ब मेरे लाइफ में बता रहा है, एक्स्ट्रा आई एम गोइंग बियॉन्ड दिस वन, कि अ ड्रॉप ऑफ वाटर कैन बी अ फ्लड इन द हाउस ऑफ एंड्स। प्रॉब्लम हर एक को रहता है, मेरे को, इनको है, इनको है। उस प्रॉब्लम को कहाँ तक लिमिट करना आप लोगों का काम है। और 80% प्रॉब्लम में आपकी गलती रहती है मिसअंडरस्टैंडिंग की, है ना? तो उसको करेक्ट करना है। मैं छोटा सा फिर से एग्जाम्पल इसमें देता, मैं गाड़ी से आता हूँ, मैं जब कार चलाता हूँ, मेरे बाजू कोई बैठा रहता तो कार में कभी स्क्रीन में दिखाता है गेट खुला है सिंगल। मैं दूसरे को बोलने के पहले, अरे गेट फिर से तेरा साइड का लगा, बोलने के पहले मैं मेरा गेट पहले करेक्ट देखता। 80% टाइम मेरा गेट खुला रहता है। भला आई एम एक्सपर्ट ड्राइवर, इतने साल से गाड़ी चला रहा, स्टिल गलती हो सकती है। पहले मेरा गेट खोल के पहले बंद करता, अगर वो सिंबल नहीं दिखा तो उसके बाद में दूसरे को बोलता। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अगर मेरा गेट तो बंद शुरू है, दूसरे को बोलो तो क्या इंप्रेशन रहेगा, ये है। और उस दिन हमारी जो प्रेसिडेंट मैडम ने जो चीज़ मेरे को बोला, पहले मालूम था लेकिन मैं आपको फिर से बोलता हूँ, वो चीज़ यानी कि अगर कोई आप काम कर रहे हैं, है ना, तो वो काम में कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे तो डोंट बी रिएक्टिव, वक्त के साथ वो प्रॉब्लम निकल जाते हैं। तो इस तरह से आप भी जिस चीज में आप इतना अच्छे से काम कर सकते हैं, जो डिग्री आप ले रहे हैं, जो जैसा आप बर्थडे के दिन केक काटते हो, अपना केक की आइडेंटिटी कैसे होती है, ऊपर के क्रीम से और फ्लेवर से। मैं आपको नहीं बोलूँगा आपका बर्थडे हुआ कौन सा केक का, वो छोटे बच्चों को बोलना पड़ता, आपको नहीं बोलना पड़ता, ठीक है ना? तो उनके हिसाब से एग्जाम्पल्स बोलने का ढंग लग रहता है। आप मार्केट से केक कौन से इस पर आते हो, क्रीम के भरोसे ना, बट उसका अल्टीमेट टेस्ट काय पे रहता है, ओरिजिनल केक जो स्टफ रहता है व्हाइटिश, ठीक है। बट व्हाइटिश स्टफ का केक रहेगा तो उसकी वैल्यू नहीं रहेंगी। जो आपकी डिग्री है, जो आपका मैकेनिकल नॉलेज है, उसके ऊपर क्रीम आएंगी। क्रीम का आएगी रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, है ना। उसका क्रीम जब आएगा, पहला क्रीम तो आएगा इसका ड्रेस पैटर्न, दूसरा इंपॉर्टेंट क्रीम आएगा आपका बात करने का ढंग, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट। अगर वो आएगा तो उसकी वैल्यू अचानक बढ़ जाएंगे। इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग यू कि आप जब भी कोई बात करें, जिससे भी बात करते हैं, जो कमिटमेंट है पूरा करना, और जो क्वालिटीज है ये आप अच्छे से करोगे। आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 8 क्वालिटी में आपने एक एक भी क्वालिटी जो आपको अच्छा लगा और देखे उसको अप्लाई किया, तो कल आपका यहाँ का एनवायरमेंट बदल जाएगा, यहाँ का एनवायरमेंट बदल जाएगा, यहाँ का फाइनल आउटपुट बदल जाएगा। फाइनल आउटपुट बदल जाएगा तो उसमें ओवरऑल आपका फायदा होगा। क्योंकि जब कोई पेट छोटा रहता है तो एक को फायदा, जब पेट बड़ा होता है तो बहुत लोगों को फायदा होता है। इसलिए ऑलवेज डोंट ट्राई टू बी सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड, मेरा क्या फायदा होगा। ऑलवेज फायदा ऑर्गेनाइजेशन करो। एक मेरे सिविल के एचओडी केडी के में मैं एक ऐसे लेक्चर देने गया तो उन्होंने अपने स्टाफ को बोला था कि हम अपना कैसा फायदा वो नहीं देखेंगे कितना बड़ा बने, जब हमारा केडी कॉलेज आगे बढ़ेगा हमारा अपना फायदा होगा। इसलिए ऑलवेज थिंक कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में, हुए ऑर्गेनाइजेशन, योर फैमिली इज योर ऑर्गेनाइजेशन, योर घर हाउस, दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन, बाहर में सोचो, उस ऑर्गेनाइजेशन का फायदा करो, निस्वार्थ और डेडिकेट हो गए। लोग बहुत से मिलते हैं लेकिन डेडिकेट काम करने वाला बहुत कम लोग मिलते हैं, सेल्फलेस। ऐसा उस तरह से काम करो, आपकी वैल्यू बढ़ाओ और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। आपको कभी मेरे को कॉन्टैक्ट करना, आप कभी भी कर सकते हैं। आई एम थैंक यू टू यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू लिसन। ठीक है, एनी क्वेश्चन? यू आर फ्री टू। आपने अपना 1.5 घंटा दिया, थैंकफुल। आपका मेरे ऊपर बर्डन है उसका, तो उसका आपको राइट है, आप मेरे को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप, मेरा नाम आपको मालूम है, कांटेक्ट नंबर नहीं मालूम, नो नीड।
आप गूगल में जाओगे, मेरा नाम डालेंगे डॉक्टर धनंजय बड़े नागपुर, मेरा नंबर आ जाएगा। और वही नंबर जो विठोबा दंत मंजन है ना, जिन्होंने मेरे को स्टोरी बताया था, वी हैव सम बिजनेस ग्रुप, उन्होंने अपना पर्सनल नंबर गाड़ी पे लिखा है। तो इसमें क्यों लिखा है? क्योंकि कभी किसको जरूरत पड़े तो प्रॉपर आदमी से गाइडेंस मिला है। सेम मैं करता, मेरा पर्सनल नंबर ऑनलाइन है, क्योंकि किसी पेशेंट को कभी आधी रात को जरूरत पड़ी तो उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलने को है। आई राइट माई पर्सनल नंबर, मेरा ऑनलाइन में मेरा नंबर है, मेरे वेबसाइट में नंबर है, इसलिए कि कोई पेशेंट अगर आधे रात को कॉल करे दर्द में तो ही शुड गेट प्रॉपर गाइडेंस। या अपसेंट में गाइड कुछ फ़ोन करे तो मेरे स्टाफ आंसर नहीं दे सकते, मैं आंसर देता, दैट्स माई रेल, बिकॉज माई एवरी पेशेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब मैं पेशेंट करता, आपके कितने फ़ोन है मैं रिसीव नहीं करता, दैट इज माई पहला रूल। मेरे लिए वो आदमी इंपॉर्टेंट है। बी बोल्ड इन व्हाट इज स्टैंड फॉर जो होता है ना, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कितने इंपॉर्टेंट कॉल है मैं नहीं लूँगा, बिकॉज मेरा एक सेंटेंस अगर मेरा नाम स्टोर करते मेरे व्हाट्सएप पे है, गिव योर 100%। अब जो भी काम करते, जिससे बात करते, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बात सिर्फ मुंह से नहीं कर रहा, मेरे एक्सप्रेशंस, मेरे आईज और माइंडसेट एक ही काम कर रहा है। आई वांट टू गिव माई 100% विथ माई एक्सपीरियंस। ऐसा है तो वो काम आप भी करो, जो भी काम करना गिव 100% विथ वैल्यूज, सो दैट यू शुड नॉट बी ह्यूमन बीइंग, यू आर अ गुड ह्यूमन बींग्स। बीइंग ह्यूमन शुड बी योर आइडेंटिटी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी। चलिए, ठीक है, एनी क्वेरीज यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। आई लाइक टीचिंग। मैं जब मेरे बच्चों को पढ़ाता ना, बच्चे मीन्स फाइनल ईयर स्टूडेंट, 30, तो बाकी लोग ऑब्लिगेशन पढ़ा पाते हैं, मैं जब पढ़ के बाहर निकलता मैं थकता नहीं, आई बिकम सो हैप्पी। जैसे आप लोग गार्डन में रहते हैं, एंजॉय करते हैं, सेम वे। इसलिए आप भी जो भी काम करते हैं ना उसमें इंटरेस्ट लो, अपना हार्ड पोर करो, उसकी क्वालिटी अलग आती है। जब केयरिंग करते, छोटे बच्चे की मदर भी केयर करती है और वो आया भी केयर करती है, दोनों में फ़र्क होता है ना। घर में खाना बनाते, होटल में खाना बनाते, दोनों में फ़र्क आता है। ऑलवेज थिंक दैट वे। जो भी काम करते हो, जिससे बात करते हो, 100% दिल से बात करना, सही में आपका लाइफ बदल जाएगा। ये मैंने बोल रहा, हमारे एक्सपीरियंस बोल रहा। हटके होता वो, और वो आदमी इतना हटके होता, ऑर्गेनाइजेशन में उसका सब्सिट्यूट कोई मिलता नहीं। ऐसा है, ठीक है, चलिए सर इसका करो। मैं कोई भी को पार्टिसिपेट मिलाना चाहती हूँ और First of all, thank you so much, Prashant and Purushottam, for arranging this session. And thank you so much, J.C. Dhananjay Balde sir, for giving a valuable time to us. And in this session, I learned about the lot of things like in values, trustworthiness, respect, responsibility, caring, citizenship like this, and we will implementing these things. Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच। अब देखो, सबको बोला उसमें से वो पहले आई, ये लीडरशिप की आपको पढ़ाऊंगा कैसे। अगर आपको लाइफ में कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बी रिएक्ट टू, डायरेक्ट उसको ग्रैब करना। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, लेकिन जो मिलती है उसको ग्रैब करो, वो आपको बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करेंगी। ऐसा है, सबको चांस मिलता है लेकिन कौन फायदा ले तो आगे जाता है। ऐसा है। नेक्स्ट वन, वाह, So thank you, JC Prashant sir and PSK team for organizing this session. So and thanks to you sir for the valuable time that you have provided. तो आपका जो प्राइवेट का जो सेशन था, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें पता थी कि नहीं ऐसे से होता है, हमें ऐसे से करना चाहिए, बट वो एक तो मैंने लिखा था इंडियन मिला, बट आप जब आए तब वो एक रियलिटी से भी फिट हुआ कि नहीं पता था बट हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, करना चाहिए। हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो वो भी मुझे लगा कि मैं भी कभी कभी अपने पेरेंट्स के साथ कैसे हो जाता है कि मूड खराब हो जाता है, कुछ बोल लेते, तो मुझे ना सडनली हिट हुआ कि नहीं मैं भी इस तौर पर कभी कभी बात कर देती हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने बताई एंड श्योरली पोलाइट टॉक ये ऑर्नामेंट्स। बैठिए, एक छोटा सा आपको आपके लाइफ पे एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट मैच आप देखते हैं ना, बैट्समैन का काम रहता है हिट करना, क्रिएट करना, वहाँ पे 5-6 प्लेयर रहते हैं, ऑफ साइड, ठीक है ना, उनका काम है रोकना, वो तो नहीं रहेंगे, तो वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैट्समैन है ना, दोनों के बीच में से मारता है या ओवर से मारता है, और उसके साथ में एक पीछे आदमी खड़ा रहता है जो पैड पहना रहता है, ग्लोव्स पहना रहता है, हेलमेट पहना रहता है। बैट्समैन अगर उसको अपना दोस्त समझ रखे ना तो गलती हो जाती है, अगर बैट्समैन थोड़े क्रीज से बाहर आ गया तो स्टम्प कर देगा। ऐसी दुनिया में लोग रहते हैं, दिखते हैं,
वो आपको हेल्प करने को नहीं रहेंगे। एक आपका बहुत सबसे क्लोज फ्रेंड या सबसे क्लोज रिलेटिव आपके पीछे विकेट गिरकर काम करेंगे। बट आप ये नहीं बोल सकते दुनिया में इतने प्रॉब्लम ये मैं इसे कैसे करूँ काम करूँ, इसको करना वो करेंगे ही। 6 और 4 आपको मारना आपके हाथ में मार सकते हैं। जैसे जबान है, 32 दांतों में जबान रहती है, जबान ने थोड़ा हाथ एड़ा गया तो चबा जाएगा ना। तो जबान क्या करती है, खाने को दांतों के बीच में डालती है। आपको ज़िंदगी में ये रोल प्ले करना है, बैट्समैन का रोल वेट करना है, जो बॉल को प्ले करना है, जिसको 4 मारना गली के बीच में, जिसको 6 मारना है। बट पीछे एक आपका बहुत अच्छा दोस्त रहेगा, उसको ये नहीं बताना है, बट ऑलवेज बी केयरफुल। वो उसको फिर धक्का लगा कि फिर मूड डिप्रेस होना ये होना, उससे बेटर है अपने सीक्रेट्स कभी ज़्यादा किसको बताना नहीं, बट ऑलवेज बी फ्रेंडली बनना। मैं स्टूडेंट को हरदम ये बात बोलता हूँ, आई एम फ्रेंडली विथ यू, आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड, बट आई एम फ्रेंडली विथ यू, सो दैट आप बी झिझक, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन योर हेजिटेशन। ठीक है ना। ये एग्जाम याद रखना, अगर मेरे को याद करना है क्रिकेट का एग्जाम्पल, ताकि आप मुझे ना भूले, और आप मुझे ना भूले, दैट इज द अवार्ड इज आपके लाइफ स्टाइल, आपके सोच में चेंजेस आए, और कल यहाँ पे वो एनवायरमेंट मेरे को दिखे, सर मेरे को बोले कि हाँ इतना चेंज हो रहा है। ऐसा है। आपने एक बुक पढ़ा क्या शिव खेरा का, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, यू कैन विन बुक है ना, उसमें वो लिखा है, बस दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको आपने डिग्री ले लिया, पर आपको अगर साइड चेंज करना है, एक दोस्त और बुक्स, अलग अलग बुक्स पढ़ो, सर भी शायद पढ़ोगे, उसमें आपकी सोच बदलती, थॉट प्रोसेस बदलता। और सबसे इंपॉर्टेंट, जितना फिजिकल रूप पढ़ो उतना आपका सोच, उससे ज़्यादा सोच है, कैसे आप सोचते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, वो सोच ही आपको आगे ले जाएंगे, और दूसरा कोई नहीं। सोच जैसी रहेंगी तो वर्ड्स में आती है, कोई गुस्सा के बात करता है तो उसकी सोच वैसे रहती है। अगर आपकी सोच ही पैसिव रहेंगी, सॉफ्ट रहेंगी, तो कभी वर्ड्स बाहर नहीं आएंगे ऐसे। ठीक है। एक बार गए हुए वर्ड्स वापस नहीं आते। तो रिस्पेक्ट का पार्ट है, मैं भूल गया था, वो बहुत जरूरी है, किसको बोलने के पहले डबल सोचना, ट्रिपल सोचना पड़ता है, ऐसा है। उसमें रिस्पेक्ट का पार्ट करो। ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच। हाँ Sir, I want to thank you for coming here and your energy and effort for guiding us. We all know, sir, ethics, what is right and what is wrong. Yeah. But as you already told to us that the more simple thing, the more difficult to implement. Whatever you said, trustworthiness, respect, loyalty, that are important in our life, because beside the, or we can say beside the education, it is important in our life to become a good human. So for being the humanity, we have to implement all these things, and I will definitely try to implement all these things and bring all the things in my life, so I can also serve the society. So thank you, sir, for coming here. Thank you, yes. चलो, थैंक यू। आपने इम्प्लीमेंटेशन बोला ना, आपका गोल सेटिंग का सेमिनार हुआ क्या, ट्रेनिंग, उसमें हाउ टू अचीव गोल सेटिंग में जो भी चीज़ इंप्लीमेंट करना है ना, दिमाग में रह के नहीं होता, उसको कागज़ में लिखो, मोबाइल में लिखो, वहाँ लगाओ, बेस्ट वे है। हम भी आज भी करते हो, पहले भी किया, होता है ऐसा। ठीक है, चले सर। तो आज का सेशन था इथिक्स एंड वैल्यूज। तो सर ये तो सभी को पता है, जो आपका एटमॉस्फेयर में, अगर जिस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हो वहीं से आप पढ़ जाते हो कि क्या इथिक्स है, क्या वैल्यूज है। तो उसके बारे में तो सभी को पता है, और हम सुनते भी। सर, हमारे सर ने भी बहुत बार बताया, जो बोलते थे मराठी में वांग्याची भाजी रोज रोज, वो सर जो बोलते डेली हमको सर बताते कि कोई भी मीटिंग हो या कोई भी डिस्कशन हो, उसमें बताते कि ये इथिक्स और जो वैल्यूज है वो बताते। लेकिन जो आपका आज आपके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि जो आप आए और उसके बाद में एकदम से जो सेशन स्टार्ट हुआ, बहुत सारे ट्रेनर होते हैं जो पहले एक्टिविटीज लेंगे, फिर ये सारी चीज़ें होती है, उसके बाद में सेशन स्टार्ट होता है। बट जो आपने एक बार कनेक्ट किया हमको, तो ऐसा लग रहा था कि सही से और सुनना चाहिए। और क्या बता रहे मेरे सर ने, यानी आज जो आपने बताया ये तो एक ट्रेनिंग का पार्ट हो गया, बट जो लाइव के सेशन, लाइव में जो हुआ है आपके, या जो आपने एक्सपीरियंस किया है, वो चीज़ें हमको बता के यानी कुछ नया बताया, ऐसा लगा मुझे। यानी कोई ऐसी चीज़ हमको मिली कि सही से इथिक्स वैल्यूज ठीक है एक जगह पे, लेकिन जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की है लाइफ में, उस चीज़ों को कनेक्ट करके हमको बताया, तो उसमें बहुत अच्छा फील हुआ कि नहीं, उसको भी अच्छा यानी सीखने को मिला आज। तो थैंक यू सर।
आप यहाँ आए और हमें ये सब चीज़ें बताई। और जिसे नागपुर बच्चों का भी मैं को भी थैंक यू कहूँगा कि ये सेशन ऑर्गेनाइज किया। चलिए, थैंक यू सो मच। Anyone? So for token of gratitude, I would like to call Prashant sir on the line. सर रेंद्र ऑलरेडी गए हैं आपकी याद में। ये सब दूसरे टॉपिक का है। चलो, थैंक यू। वी आर ऑलवेज विथ यू, नॉट बिकॉज यू आर a JCI member. You are a vibrant leader. You are creating your own empire. That is most important. JCI के क्लब बहुत सारे होंगे, हर साल प्रेसिडेंट बहुत आते रहते हैं, बट एक अलग आदमी जो खुद का कुछ एम्पायर क्रिएट कर रहा है, दैट इज बहुत इम्पोर्टेंट, मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो मेरे तरफ से भी मैं बोल देता हूँ सर को थैंक यू। एंड आप सभी लोगों ने बड़े पेशेंटफुली आज के सेशन को सुना और मैंने भी कुछ बहुत सारी चीज़ें आज सीखी हुई है। लेकिन जो सेशन जो होते हैं ना काफ़ी सारे होते हैं, शायद आपको ही पता है कि पूरे जोन लाइन में सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग जैसे नागपुर फॉर्चूनिंग एंड हम लोग टॉप में ही हैं। तो इतना कुछ ट्रेनर ने फील कर दिया ना अंदर में, अब समझता है मेरे से कि याद क्या रखें और क्या अप्लाई करें, बट वो बार बार याद होना चाहिए करके हम लोग ट्रेनिंग करते रहते। एथिक्स एंड वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने शायद कल ही बताया था, 18 साल से मैं IT इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और अपनी जो जर्नी है एट द एज ऑफ 16 मैंने शुरू करी हुई है, मैंने काम करना शुरू किया सर। तो यहाँ तक अगर हम आए हुए हैं तो ये सब चीज़ों को हमने फॉलो किया है, तभी हम लोग यहाँ आए। बीइंग अ मेंटर या बीइंग अ कंपनी ओनर, समटाइम हमारे फेसेस अलग अलग दिखते हैं बिकॉज सिचुएशन होती है, तो हमको कहीं पर टफ और कहीं पर हमको थोड़ा सा सॉफ्ट बनना ही पड़ता है। तो नहीं बने तो नहीं चलेगा, बनना पड़ता है। बट ये सारी जो वैल्यूज जो होती है ना उसको हम फॉलो भी करते हैं बिकॉज आज 14 साल PSK को हो चुके हैं और हमारी जो टैगलाइन है, क्या टैगलाइन है हमारी? कमिटेड फॉर एथिकल वर्क। हम जो भी किसका भी काम लेंगे, किसको कमिटमेंट किया हुआ है तो वो हम लोग को लीगल तरीके से प्रॉपर तरीके से हम लोग करेंगे। नहीं जम रहा है तो नहीं बोलेंगे और कोई भी गलती भी तो माफ़ी भी मांगेंगे, कस्टमर रहे या फिर वो इंटर्न रहे, तो ये हमको फॉलो करना है। तो वंस अगेन थैंक यू सर, और हम और बहुत सारी ट्रेनिंग आपके साथ करना चाहेंगे। आपको समय दीजिए हमको, और हमारे जो एम्प्लॉई है, इंटर्न्स है, मेंबर ऑफ JCI इनको हमको एम्पावर करना है और वर्ल्ड में कुछ बदलाव लाना है। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक्स। इस सेमिनार का मतलब है इट इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रू लीडरशिप, एथिक्स एंड वैल्यूज। ठीक है, फोटो ले लेते सर के साथ। बैठ जाए, ये सब लोग खड़े रहते क्या नहीं होगा? ये आएंगे नहीं ना। ठीक है, चलिए। ये लीडरशिप में ऐसा है, हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में रहते तो हम लोग सर्वेंट लीडरशिप बोलते हैं, बट व्हेन यू आर इन द ऑफिस यू हैव टू गो द ऑथोरिटी लीडरशिप। आप भी आज सेल्फी ले लो। पीछे का बैनर आया क्या? थोड़ा लगे तो क्लोज ले सकते हैं, फोटो में दिखना चाहिए, है ना? क्लोज वाले ले लो, इनको क्लोज ले सकते हो। दिस इज फैमिली है। बाद में प्रूफ मांगा जाता है ना, इसलिए वो फोटो जरूरी है। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ये सब्जेक्ट के बाहर का फायदा है। हाँ, नहीं NP ने वही बहुत- बोला है, आप कितने भी काम कर लो,
नहीं यहाँ से नहीं, नहीं कहीं पे भी। वैल्यू ही नहीं है। मैं मेरा एग्जाम्पल था, हम लोग पेशेंट ट्रीट करते नहीं इतने साल से, हमको हर पेशेंट का डॉक्यूमेंट से आवश्यक रहता है, इसलिए कोई पेशेंट कब बदल जाएगा या 10 साल का कुछ चेंज कर देंगे, वो तो हमारा डॉक्यूमेंट रहता, हमने ये बोला था। आजकल लीगल ऑर्गेनाइजेशन है ना, एवरीथिंग हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड, कॉलेज में, क्लिनिक में। डॉक्यूमेंट नहीं किया तो आजकल का सोशल और ये है और सब सोशल मीडिया है, अभी कौन को बोल नहीं सकते। चलिए चलिए, पेन ड्राइव मेरा तुमने कहाँ रखा? हाँ, पेंडर बैक साइड से निकाल नीरज निकालो। निकाल देता हूँ भाई। चलिए, अरे वाह, तो सबको जो आगे